Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Just wait for 1 more minute, then we'll start. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. मैम एक बार डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट का थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोबारा दे देंगी? हाँ जी बेटा, वो मैंने क्वेश्चंस भी कराने हैं, तभी उसी से स्टार्ट करूँगी। जी मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। हम पी टर्म टेस्ट को कंक्लूसिवली यूज कर सकते हैं, मतलब एज अ फॉर मतलब सीधा रिजल्ट ही? कौन सा टेस्ट बेटा? मैम पी टर्म टेस्ट वाला जो आपने कल करा था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि सिग्मा 1/n² है ना, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्वर्जेंस इसकी चेक करो, और ये मान लो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट राइट है ना कि दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। बट अगर मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देन ऑब्वियसली यू विल गो फॉर इंटीग्रल, क्योंकि पी टेस्ट कैसे प्रूव करते हैं आप? इंटीग्रल यूज करके, कॉची इंटीग्रल टेस्ट यूज करके, राइट बेटा? तो मैम उसमें हम लोग को सारे केसेस दिखाने होंगे, p greater than 1, p less than 1 और p equals to 1 वाले केस में? ना, अगर सिग्मा 1/n² है तो इसका मतलब 2 के लिए कर रहे हो आप, बस अच्छा आप मैम, सिग्मा। नहीं मैम, अगर 1/n p हुआ, मान लीजिए हाँ, p ही वो हुआ, तो फिर आप सब दिखाओगे ना, अगर क्योंकि उसमें p की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है मैम। Can you explain DCT once again? Yes, Please? beta, I will start from DCT only today. Okay, ma'am. Yeah. Okay, beta. So everybody put yourself on mute. I will start. Okay. So can you see the screen? I hope everybody is able to see the screen. So let us see DCT. DCT is your direct comparison test, right? So this is when you have sigma an. This is direct comparison test. So you have sigma an, where an is positive, and if an is less than equal to some another series term Cn for all n greater than equal to capital N, and sigma Cn n from 1 to infinity is convergent, then sigma an is also convergent. मतलब अगर आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज किसी एक ऐसी सीरीज की टर्म से हर टर्म छोटी है जो कि कन्वर्जेंट है, तो आपकी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। एंड इफ यू हैव, if an is greater than equal to dn for all n greater than equal to capital N, and dn is divergent, इसका मतलब आपकी जो सीरीज की टर्म्स हैं, they are greater than the terms of a series which is divergent, then sigma an is also divergent. Clear है बेटा ये चीज? I will explain with examples. So this is the test. इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे इसको, but obviously this is very clear कि अगर टर्म्स पॉजिटिव हैं और ये वाली सीरीज से छोटी है आपकी टर्म्स और ये कन्वर्जेंट है, मतलब इसका सम फाइनाइट है, देन ऑब्वियसली आपकी सीरीज का सम भी फाइनाइट होगा। एंड लाइकवाइज हियर, फाइन। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल।
Example for DCT, first example is sigma n from 1 to infinity 3 upon n plus root n. Fine. Now obviously you can say कि मैम हम इसको किसी और उससे भी कर सकते हैं, मतलब DCT से नहीं, हम इंटीग्रल टेस्ट लगाना चाहते हैं या nth टर्म टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टेस्ट से ही करना है. फाइन. मैम ये नेट टर्म टेस्ट से तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि तो जीरो को इसमें टेंड इनकंक्लूसिव है. यस बेटा, ऑब्वियसली राइट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि किसी भी क्वेश्चन पे आप सारे टेस्ट लगा सकते हो. Some tests will give you results and some will be inconclusive, right? So let us see here. इसमें मैं क्या कर रही हूँ? I'm showing you that this. Can I say something about this n plus root n? N plus root n is, can I write like this? 3 by n plus root n is less than 3 by n. क्योंकि यहाँ आपकी डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है as compared to this. N plus root n for sure is greater than n. Therefore, this number is smaller than this. Is that okay with everybody? This is true for all n greater than equal to 1. Okay. So first you will say that an here is 3 by n plus root n, which is positive, and also this is less than 3 by n. Fine. So इस पे what is this series? Can you tell me? 3 by n is Divergent. divergent. Okay. Divergent. This is divergent. Fine. कैसे divergent है ये? By pth test. है ना? And 1 by sigma 1 by n raised to power 1 is divergent. Is that okay? So can you conclude? यहाँ पे DCT लगेगा? बताइए. Yes. नो. देखो ना आपके पास क्या हो रहा है. आपकी सीरीज की टर्म्स एक सीरीज से कम है और वो सीरीज डाइवर्जेंट है. यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग. अगर ये कन्वर्जेंट होती देन यू कैन कंक्लूड एनीथिंग. इज दैट ओके? मतलब डाइवर्जिंग के लिए ग्रेटर टू साइन आना चाहिए था. हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन आना चाहिए ना. ये देखो ऊपर. अगर आप ध्यान से, आपने रट्टा नहीं मारना है, आपने सोचना है. देखो आपके पास अगर an cn से छोटी है और cn का सम फाइनाइट है तो ऑब्वियसली an भी फाइनाइट होगा. ओके. अब an जो है वो dn से बड़ा है और dn का सम इंफिनिटी है तो an का भी सम इंफिनिटी होगा. अब अगर यहाँ वाला केस है an इज लेस देन इक्वल टू cn और cn इंफिनिटी बन रहा है तो आपको क्या पता है कि an क्या बनेगा? यू कैन नॉट से एनीथिंग. इज दैट ओके? ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अब इस पे DCT लगाना है मैंने, मान लो, और ऑब्वियसली यू विल से कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कंडीशन बताई थी कौन सी? कि जब हम an और bn चूज करते तो an और bn ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट हो, ऐसा चूज करना है हमको. an और bn an और bn का रेशियो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होना चाहिए. बेटा अभी वो मैंने टेस्ट नहीं करवाया है, प्लीज कंफ्यूज नहीं करो. अभी वो वाला सर टेस्ट ने कहा कि हम जब bn ऐसे ही चूज करें. अभी मैंने वो कराया ही नहीं है, अभी मैं कराऊंगी. वेट. ओके. अलग टेस्ट है. या वो अलग टेस्ट है LCT. अभी मैं DCT पे हूँ. राइट. ओके. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, एंड डोंट वरी अबाउट कि हमें कैसे पता चलेगा. लिटिल बिट प्रैक्टिस विल टेल यू एवरीथिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक दिस. 3n लिख रही हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू n plus n दैट इज ग्रेटर देन n plus root n plus 0. मैंने इसकी जगह पे रूट n लिख दिया, इसकी जगह पे 0 लिख दिया. Is that okay? So now I know that 3n is greater than n plus root n. So it implies 1 by n plus root n. 3n is greater than n plus root n. तो मेरे पास क्या आएगा? 1 by n plus root n is greater than, बताइए. 3 by n plus root n is greater than 1 by n. आ गया ना? Yes, ma'am. Right. Now you have, this is the term of your series. This is greater than sigma 1 by n. This is divergent. Sigma 1 by n is divergent. And your terms are greater than that series terms. Therefore, by direct comparison test, sigma n from 1 to infinity, 3 by n plus root n is divergent. Is that thing okay? ये फिर से समझा दो ये. Yes, ma'am.
बेटा मैंने क्या किया Yes, है ma'am. 3, मेरे पास ये था ना मेरा 3/n plus root n. ओके एक बार तो मुझे ये तो सीधा पता चल रहा है कि दिस इज लेस देन 3/n, बट उससे कुछ हो नहीं रहा है, उससे डीसीटी नहीं लग रहा है. फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने 3, अगर मैंने एक्चुअली आई वांट टू हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे नीचे n चाहिए, तो मैंने कोशिश की ये प्रूव करने की कि ये होता है एंड दिस इज ट्रू. फाइन, बिकॉज यू कैन राइट 3n as n plus n plus n. इसको मैं 0 लिख रही हूँ, इसको मैं root n लिख रही हूँ, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन n plus root n plus 0. So you have 3n is greater than n plus root n. तो यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ. So you have 3/n plus root n is greater than 1/root n. Fine. So this is divergent. Therefore, by DCT, this is also divergent. Let us look at more examples. फिर आपको समझ में आएंगी चीजें. मैम Okay. Yes, बेटा. मैम अगर हम 3n की जगह 3/2n ले लें then also it will work. 3/2n. कहाँ पे? यहाँ पे? Yes, ma'am. No, ma'am. In the first step, we have taken 3/n. We can take 3/2n. Which step? This one? Yes, ma'am. Greater than 3/2n. 3/n plus root n greater than 3/2n. n plus n. Yes. Yeah, that will also work है ना. This is simpler. Can you see? यहाँ पे this क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया, so now this series is 3/2 1/n. This is divergent, so this is also divergent. Is that okay? Got it? Yes, beta, you can do like this also. So there are so many ways to do a simple question. एक single question करने के there are so many ways. Let us look at this problem. Sin square n upon 2 raised to power n. Is it convergent or divergent? The moment you see sin की maximum value कितनी होती है बेटा? 1. तो sin square n upon 2 raised to power n is less than equal to 1 raised to power 2n. Why? Yes, ma'am. Because sin square n is less than equal to 1. Okay, so this is, what is this? Sigma 1/2n is a GP with common ratio half. Half. Yes, ma'am. Therefore convergent. Mod or less than 1. Okay, so this is convergent and the terms of your series are less than these terms. Therefore by DCT, Convergent. sin square n by 2 raised to power n, n from 1 to infinity is convergent. Is that okay? Clear है बेटा सबको? Yes, ma'am. Now here you note one thing कि अगर आपका ये सीरीज होता है n from 1 to infinity sin n upon 2 raised to power n, फिर क्या होता? Divergent लगता कि नहीं? नेगेटिव DCT जाता नहीं लगना था। पॉजिटिव टर्म्स नहीं होता. बेटा, आप DCT नहीं लगेगा, DCT will not be applicable. Why? क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव नहीं है. sin n तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ना. तो आपने जब भी DCT लगाना है, you have to make sure सबसे पहला स्टेप that an is greater than equal to 0. So यहाँ पे कुछ और लगेगा, we will do that later, but here you have to note that thing कि अगर यहाँ sin square नहीं होता तो आप क्या करते? Fine? Is that okay? Yes, ma'am. Okay, next problem. N from 1 to infinity, 1 plus cos n upon n square. Convergent, divergent. Convergent, ma'am. कैसे करोगे बेटा? 1 plus cos n upon n square. सबसे पहले ये पॉजिटिव है? Is it positive? Yes. Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि Yes, cos n ma'am. की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? Minus मैक्सिमम 1. नेगेटिव वैल्यू मतलब -1. So you can write it like this. This is equal to 2 sin square n by 2 upon n square, है ना? You can Yes, write it ma'am. like this. Yes, So ma'am. this series is terms are positive. Also sigma these terms 2 sin square n by 2 upon n square less than equal to 2 by n square. Now this series on the right hand side sigma 2 by n square is convergent by which test? P-term test. By P-term P test. test.
पी टर्म मैंने गलत बोल दिया होगा अगर मैंने पी टर्म बोला है. दिस इज पी टेस्ट. पी मतलब ये. Okay, ma'am. ओके. सो 2 आपको पता है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज 2 into sigma 1 by n square. So this is convergent by p test. Therefore by DCT convergent. आपकी गिवन सीरीज जो है वो क्या है? Convergent. Is that okay? So we will practice more question. Next test is. मैम एक मिनट स्क्रॉल अप कर दी थोड़ा सा. Yeah, sure. Discussion. मैम बस मैम. यस मैम यही. Thank you, ma'am. I want to tell you 2-3 tests today so that you can complete your second tutorial sheet. I will practice more questions later on. So the next test is LCT, and don't worry about the list of tests we will make once we will complete everything. LCT is limit comparison test. What is limit comparison test? It says that suppose you have an positive, bn positive, two series, both positive terms, right? And जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से पॉजिटिव हो. वही बात फंडा कि कुछ स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स अगर ना भी आपके रूल्स फॉलो करें तो इट इज ओके, बिकॉज कन्वर्जेंस को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू हैव टू सीरीज an and bn and limit n going to infinity an upon bn आपने निकाला. मान लो that is equal to c. And this c is suppose positive, not equal to 0, not equal to infinity. Positive तो इसने आना ही है क्योंकि an और bn दोनों पॉजिटिव हैं for n greater than equal to n. So positive तो ये आएगा. अगर c 0 भी ना हुआ और infinity भी ना हुआ, मतलब फाइनाइट नंबर हुआ, then sigma an and sigma bn behave similarly. मतलब एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरा भी डाइवर्जेंट. So this is LCT first test, first part. Second part is if limit n going to infinity an upon bn is 0 and जो नीचे वाला सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, सिग्मा bn is convergent. अगर लिमिट 0 आती है और bn कन्वर्जेंट है, सिग्मा bn, then sigma an is also convergent. अगर आपका लिमिट जो है वो इंफिनिटी आती है एंड नीचे वाला जो है वो डाइवर्जेंट है, so it implies ऊपर वाला सीरीज जो है वो इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. इसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगी, बट आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दिस इज सो. एम आई ऑडिबल? Yeah, let me give you the explanation, then you can ask. You see, here we are saying an और bn की लिमिट फाइनाइट आ रही है. फाइनाइट मतलब ये 2 होगी या 4 होगी या 5 होगी. इसका मतलब an is equal to say 5 times bn. तो अगर सिग्मा bn almost equal to, not exactly, but at the very end, मतलब जब आपका n बहुत बड़ा होगा तब an is almost equal to, अगर c 5 होता, 5 times bn. तो ऑब्वियसली अगर an कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट होगा, bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगा अगर लिमिट फाइनाइट आती है. दिस इज अ रफ एक्सप्लेनेशन. इज इट ओके विद एवरीबॉडी? इफ यू आर सेइंग लिमिट ऑफ an अपॉन bn इज अ फाइनाइट नंबर, इसका मतलब यू कैन थिंक ऑफ इट एज an इज अ मल्टीपल ऑफ bn विद दैट फाइनाइट नंबर. देन ऑब्वियसली अगर an कन्वर्ज करेगा, सिग्मा an फाइनाइट है तो सिग्मा bn भी फाइनाइट होगा और वाइस वर्सा. इज दैट ओके? लुक एट द सेकंड पार्ट. हियर यू आर सेइंग कि लिमिट an अपॉन bn 0 आ रही है. अच्छा मुझे बताओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट 0 कब आती है? अगर नीचे वाली चीज छोटी हो या बड़ी हो? बड़ी हो. राइट. इसका मतलब अगर लिमिट 0 आ रही है इसका मतलब bn इज ग्रेटर देन an. इसका मतलब Yes, ma'am. an जो है वो bn से छोटा है. पहले ये इसका मतलब समझ में आ गया. अगर लिमिट an अपॉन bn 0 आ रही है इसका मतलब an bn से छोटा है रफली, और आप कह रहे हो bn कन्वर्जेंट है. an bn से छोटा है और bn कन्वर्जेंट है तो an को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा. Why DCT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? Let me explain again.
if some limit is 0, an upon bn limit is 0, it means that an is smaller than bn. Okay, and both are positive terms and bn is convergent, फिर an को भी convergent होना पड़ेगा. मम्मी इसके हिसाब से तो ये मतलब होना है कि जो समेशन ऑफ ए एन होएगा वो कन्वर्जेंट जीरो ही होएगा उसकी वैल्यू, क्योंकि मैं बी एन इंफिनिटी हो नहीं सकता, बी एन इंफिनिटी हो तो कन्वर्जेंट क्या 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 नहीं वैल्यू 0 नहीं है होगी बेटा, वैल्यू क्यों 0 होगी an की, क्योंकि आपका कट भी तो सकती है टर्म्स, तो जरूरी नहीं है वैल्यू 0, बस दिस ओनली सेज कि अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट होगा. ओके, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट सम और नथिंग लाइक दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लिमिट्स. बट सिग्मा an 0 नहीं होगा. इफ यू आर सेइंग कि सिग्मा an 0 ही होगा हमेशा, नो, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट. Look at the last part. You are saying limit an upon bn infinity है. Infinity मतलब an बड़ा है bn से, है ना, तभी लिमिट infinity आएगी. Is that okay? So और bn डाइवर्जेंट है, bn का सम फाइनाइट नहीं है, an उससे बड़ा है, तो an का भी सम फाइनाइट नहीं होगा. Then an is also divergent. Is that okay? मैम सेकंड पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. Second one, देखो बेटा, Yes, आप कह रहे हो कि लिमिट an अपॉन bn 0 है. अब लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, ये 0 कब आएगी? जब ये जो होगा वो छोटा होगा, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है ना. फॉर एग्जाम्पल यू हैव समथिंग लाइक दिस, n अपॉन n स्क्वायर, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, लिमिट 0 आ जाएगी. इन टर्म्स ऑफ n आई एम सेइंग. अब an bn से छोटा है और आप कह रहे हो bn कन्वर्जेंट है, सो यू आर हैविंग दिस सिचुएशन, an लेस देन bn and bn is convergent, some bn is convergent, so dct क्या कहते हैं, sigma an भी convergent होगा. Got it? मैम तो अगर फिर मैम अगर an अपॉन bn किसी फाइनाइट नंबर को टेंड करेंगे तो वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों ही नहीं होंगे? नहीं, दोनों होंगे, दोनों का बिहेवियर सेम होगा. अगर एक कन्वर्ज करेगा, देखो ना, अगर फाइनाइट लिमिट आ रही है मतलब ऐसा है, तो अगर एक कन्वर्ज करेगा तो दूसरा भी बिहेव सिमिलरली, मतलब या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता एक कन्वर्ज करेगा एक डाइवर्ज करेगा. एग्जांपल्स करने दो, यू विल गेट, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. लेट मी डू एग्जांपल्स. फाइन, ओके, सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. मैम यस बेटा. मैम अगर सेकंड केस में bn डाइवर्जेंट हो गया तब क्या तब करेंगे? कुछ नहीं होगा, ये टेस्ट कंक्लूड नहीं करेगा फिर कुछ, है ना. आई विल गिव यू एग्जांपल्स, जस्ट वेट. ओके मैम. Yeah, okay, so we have here n from 1 to infinity 2n plus 1. बेटा just wait. behave similarly का क्या मतलब है? Similarly मतलब या दोनों converge करेंगे या दोनों diverge करेंगे. Okay, examples देखिए बेटा, आपको समझ में आएगा. Wait, so you see this is the question, is it convergent or divergent? So यहाँ पे देखिए मेरा an क्या है, 2n plus 1 upon n square plus 2n plus 1. तो आपने bn इस तरह से, यहाँ पे देखिए मैं bn क्या चूज कर रही हूँ, bn आई एम चूजिंग एज 2 by n. क्यों चूज कर रही हूँ मैंने यहाँ से आइडिया लगाया कि इस जो सीरीज है इसमें ऊपर कितनी डिग्री है n की 1, नीचे कितनी डिग्री है 2, तो ओवरऑल डिग्री क्या है नीचे n की 1 डिग्री. तो मैंने ये वाला कोफिशिएंट, आपकी मर्जी आप 2 ले लो, आपकी नहीं मर्जी तो आप 1 ही ले लो इसको. So here if you look at limit an upon bn, क्या आ रही है, limit n going to infinity an n square plus 2n plus 1 upon bn 1 by n. What is that? That is 2n square plus n upon n square plus 2n plus 1. Limit n going to infinity. Now what is this limit? You divide with n square. So this is limit n going to infinity 2 plus 1 by n upon 1 plus 2 by n plus 1 by n square. So this is 2 plus 0 upon 1 plus 0 plus 0. So this is 2, finite. Therefore, अगर an upon bn की लिमिट फाइनाइट आती है, therefore by LCT an and bn behave similarly, alike, मतलब सेम बिहेवियर है. Now what is sigma bn? Sigma bn is 1 by n. This is divergent. Therefore sigma an is also divergent.
समझ में आया? मैम यस बेटा। मुझे मैम समझ में नहीं आया बी क्वेश्चन। मैम bn को आपने 1/n क्यों लिया? Yeah, okay, let me explain again. So you have this problem, right? I want to choose a bn such that limit finite आ जाए। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, मैं आपको एक दूसरा bn लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने bn को 1/n कैसे लिया, मैंने ये देखा कि ये an जो है उसमें ऊपर n की डिग्री कितनी है 1, नीचे n की डिग्री कितनी है 2, तो इसका ऑलमोस्ट बिहेवियर कैसा है, n की डिग्री नीचे 1। तो अगर मैं एक bn ऐसा चूज करूंगी जिसमें n की डिग्री नीचे 1 है, तो an अपॉन bn में फाइनाइट लिमिट आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाएगी ना फिर। डिड यू गेट इट? मैम एक बारी फिर बोलना, मैम एक बारी फिर बोलना। देखिए बेटा, आप an जो है उसमें न्यूमरेटर में n की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में n की डिग्री 2 है, तो ओवरऑल इफ वी लुक एट दिस लाइक कि n की डिग्री 1 है नीचे, एक n कैंसिल हो जाएगा। डिड यू गेट इट? यस मैम। यस मैम। मैम बेसिकली हम लोग को ऐसा नंबर, ये बेसिकली हम लोग को पॉलिनोमियल्स में ये वाला टेस्ट काम आएगा ना? हाँ बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस में हम चाहते हैं कि कोई ऐसा bn मिल जाए ताकि लिमिट फाइनाइट आ जाए। अब लिमिट फाइनाइट कब आ गई, जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होगी। ऊपर नीचे डिग्री सेम बनाने के लिए मुझे ऊपर में n से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मैं bn क्या लूंगी 1/n। ओके मैम। Got So it? ma'am, it's a common thing in all these questions कि ऐसे ही approach करना है basically। yeah, ऐसे ही करना है, but we will see कि कई क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट भी है। This is not a hard and fast rule, but still this will work in most of the cases. Okay? So अब हमने an अपॉन bn की लिमिट निकाली, तो वो कितनी आ गई, वो हमारी 2 आ गई, मतलब फाइनाइट लिमिट आ गई। So लिमिट जो हमारा LCT है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इट सेज कि जो भी an का बिहेवियर होगा वही bn का होगा, जो भी bn का वही an का। अब हमें bn का बिहेवियर पता है कि ये डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट। ओके, देयरफॉर सिग्मा an इज आल्सो डाइवर्जेंट। इज दैट ओके? नाउ आई जस्ट यहाँ पे अगर मैम 1/n से मल्टीप्लाई करने पे कोई यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, जस्ट अ चेंज मिनट। नहीं हो रहा जैसे? और क्या नहीं चेंज हो रहा मैम मैं कह रहा था क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है अगर मैं 1/n मैंने क्वेश्चन नहीं चेंज किया है, ये वाला टेस्ट लगाया है। ये टेस्ट में bn नया लेना है। अगर an अपॉन bn की लिमिट c आती है तो दोनों का बिहेव सेम है। तो हमने यहाँ पे bn एक्स्ट्रा ऐड करा है, यहाँ पे ऐड नहीं किया बेटा, bn एक नया लिया है 1/n, तो an अपॉन bn की लिमिट निकालनी है आपने। सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज। अगर मैं बेटा वेट करो प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन माय थिंग्स फर्स्ट। ओके, सो an यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन आप कंसीडर कीजिए। an इज योर सेम क्वेश्चन n फ्रॉम, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि bn आपने अगर 1/n ना लिया होता तो क्या होता, 2n + 1 अपॉन n + 1 का स्क्वायर। तो मेरा an जो है वो 2n + 1 अपॉन n² + 2n + 1 है। अगर मैं bn 1/n² ले लेती बिना मतलब के, मतलब बिना सोचे, तो what will happen? So limit n going to infinity, an upon bn क्या आता बताइए? इंफिनिटी आ जाता मैम। तो वो आ जाता आपका 2n³ + 1 अपॉन n² + 2n + 1। मैम वो तो इंफिनिटी आ जाता ना, ये तो वेट, हाँ, तो ये इंफिनिटी आ जाता। नाउ LCT क्या कहता है? LCT कहता है कि अगर लिमिट इंफिनिटी आ जाए, इफ लिमिट इज इंफिनिटी देन सिग्मा bn डाइवर्जेंट implies sigma an divergent। यही कहता है ना LCT। अब यहाँ पे सिग्मा bn क्या है, 1/n², वो क्या है, कन्वर्जेंट। तो LCT कुछ रिजल्ट नहीं देता आपको। इज दैट ओके? सो ये जो मैंने चूज किया है कि bn को 1/n लिया है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड यू विल लर्न दिस थिंग कि क्या लेना है। लेट अस प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। इज दैट ओके? सो अगर आप bn को 1/n² चूज करते तो आपका कुछ भी रिजल्ट ना आता। ओके, लेट अस लुक एट दिस नेक्स्ट एग्जांपल। सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity 1/2n - 1। अब आप खुद बताओगे कि मैम यहाँ पे bn क्या ले, an आपका 1/2n - 1 है, मेरा bn क्या होना चाहिए, 1/2n। इज दैट ओके? क्योंकि आपको an अपॉन bn की लिमिट ऐसी चाहिए जो फाइनाइट हो, या 0 हो या इंफिनिटी हो, बट अगर आपके पास चांस है कि वो फाइनाइट हो सकती है, देन
it is understood that you will take बिल्कुल this, right? So here limit n going to infinity an upon bn is limit n going to infinity 2 raised to power n upon 2 raised to power n minus 1. इसमें मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी 2 raised to power n से. So this is limit n going to infinity. मैम आपकी स्क्रीन शेयर Yeah, रुकी। wait. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. an upon bn is equal to limit n going to infinity 2n upon 2 raised to power n minus 1. I will divide with 2 raised to power n. So this is 1 upon 1 minus 1 by 2 raised to power n. So limit is 1 upon 1 minus 0, 1. Okay. अब an upon bn की लिमिट क्या आ गई? Finite. This is a finite limit. Therefore, by LCT, sigma 1 by 2 raised to power n behaves as sigma 1 by 2 raised to power n. Now what is this? Convergent. This is GP Convergent. with common ratio 1 by 2, therefore convergent. Okay. Hence, given series sigma 2 raised to power n minus 1 is convergent. Okay? Is that okay? ma'am. Let us look Yes, at one ma'am. more problem. Sigma n from 1 to infinity log n upon n raised to power 3 by 2. बताइए बेटा, what should be my bn? 1 upon n to the power 3 by 2. लो फिर ये आप कह रहे लॉग हो एन bn कैसे को हो जाएगा मैम शायद से? हाँ log in ले लो एक बार. अगर आपको ऑब्वियस चॉइस सबको ये लग रही होगी कि ये ले लूं, बट Yes, फिर ma'am. क्या होगा? Yes, लिमिट ma'am. n गोइंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn क्या हो जाएगा? लिमिट n गोइंग टू Log. इंफिनिटी log n, वो क्या आ गया? इंफिनिटी. लिमिट इंफिनिटी आ गई. अगर लिमिट Within इंफिनिटी bn. है तो टेस्ट तभी लगेगा अगर डिनोमिनेटर वाला डाइवर्जेंट है, बट हमारा डिनोमिनेटर वाला क्या है? कन्वर्जेंट. Convergent है by pH test. तो LCT will not work. Got it? तो अब आप इससे Okay. अंदाजा लगा सकते हो कि क्या लेना चाहिए हमें. मैम log n by n को भी तो ले सकते हैं. हाँ, वही बताइए मुझे क्या लूं फिर मैं. मैम अगर 1 log upon n by n n चाहिए फिर क्या है? मैम 1 upon n की पावर 1 by 2 ले लेंगे तो 0 आ 1 जाएगा। by root n. हाँ अच्छा चलो लो वो लो 1 by root n. Yes, उससे ma'am. क्या होगा? लिमिट n Zero गोइंग आ टू जाएगा, इंफिनिटी an अपॉन bn इज इक्वल टू लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी log n अपॉन n, वो 0 आ गई. तो वो इसमें टेस्ट तभी लगेगा अगर नीचे वाली चीज कन्वर्जेंट है. अब हमारी ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? व्हाट इज दिस? डाइवर्जेंट. ये तो डाइवर्जेंट है ना. हाँ, सो फिर नहीं लगा LCT, फिर नहीं लगा. ओके. फिर कुछ ऐसा लो जिससे आपकी लिमिट जो है वो या तो फाइनाइट आए या फिर 0 आए, तो आपका ये वाला जो आपने bn चूज किया है वो कन्वर्जेंट हो. क्या करूं बताओ बेटा. log n by n की लिमिट आपकी 0 है, राइट? ये कैसे आती है? log n by n की लिमिट 0 कैसे आती है? डू यू रिमेम्बर? लॉपिटल लगाते हो ना, ठीक है. अब हमारे पास अगर लॉपिटल ऐसा लगे कि नीचे डेरिवेटिव के बाद भी n बच जाए, नीचे डेरिवेटिव लेने के बाद भी n बच जाए, वो क्या कब पॉसिबल है? मैम n स्क्वायर लेंगे तब पॉसिबल है. हाँ, अगर आप n की पावर 3 by 2 से कुछ भी बड़ा चूज करो. लेट अस टेक n स्क्वायर. लेट अस टेक bn is equal to 1 by n square. So limit n going to infinity an by bn क्या हो जाएगा? That will be limit n going to infinity. आपका क्या है? log n upon n की पावर 3 by 2 divided by 1 by n square. So this is limit n going to infinity log n by क्या आएगा? ये कितना आएगा बताइए.
7/2। नहीं, ये तो हमारा कुछ गड़बड़ हो गया ना, n स्क्वायर ले लिया तो मतलब हमारा मैंने- रूट n ऊपर चला गया। रूट ऊपर भी root n आ Yes, जाएगा। ma'am. 5/2 ले लो मैम। हाँ, bn को n 5/2 स्क्वायर लो। ये आपकी फिर इन्फिनिटी आ गई, फिर ये कन्वर्जेंट है, एलसीटी फिर नहीं लगा। 5/2 से आएगा मैम। 5/2 से आएगा पक्का? चेक कर लूँ मैं। आई नो कि क्या है, बट मैं आप लोगों को चेक करवाना चाह रही हूँ। मैम आप 5/2 लेंगी तो ऊपर यस बेटा, 5/2 लेंगी मैम, अगर आप तो ऊपर 1 आ जाएगा जब फिर नहीं लिमिट पाएगा। n टू दी when मैम मैं limit रूट n an upon bn 0 होता है और हाँ। bn कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है तो an भी तो वही बन जाता है। नहीं 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 नहीं, अगर लिमिट 0 है तो bn कन्वर्जेंट implies an कन्वर्जेंट। लुक एट द टेस्ट अगेन बेटा, टेस्ट देखिए क्या कहता है। and अगर bn डाइवर्जेंट बेटा एक बार टेस्ट देख लीजिए प्लीज। अगर फाइनाइट लिमिट है तब दोनों का बिहेवियर सेम है। अगर 0 लिमिट है तो नीचे वाला कन्वर्जेंट होना चाहिए, तभी एलसीटी लगेगा। अगर इंफिनिटी लिमिट है तो नीचे वाला डाइवर्जेंट होना चाहिए, तभी एलसीटी लगेगा। इज दैट ओके? ओके मैम, ओके, सो थैंक यू। यू कैन ट्राई कि क्या लोगे। आई विल टेल यू मेरा क्या लेने से आंसर आ गया है, और आप और कोई भी n ट्राई कर सकते हो, और कोई भी bn ट्राई कर सकते हो। So I am taking here bn is equal to 1 upon n raised to 5/4. So an upon bn क्या हो जाएगा? That will be log n upon n raised to power 3/2 upon 1 by n raised to power 5/4. So that is log n by n की power 1/4. Right? अब मैं लिमिट निकाल रही हूँ इसकी an upon bn की, that is limit n going to infinity log n upon n की power 1/4. ये infinity by infinity फॉर्म है, तो मैं लॉपिटल लगाऊंगी। तो मैंने लॉपिटल लगाया, सो दिस इज 1 by n अपॉन दिस इज 1/4 n raised to power -3/4. तो दिस इज 4 by n raised to power 1 minus 3/4 लिमिट। सो दिस इज 0। फाइन, तो मेरी लिमिट 0 आ गई, और जो मेरा bn है वो क्या है? कन्वर्जेंट। कैसे? p टेस्ट से। Therefore by LCT सिग्मा जो गिवन है आपको an is convergent. Is that okay? 5/4 ये डिसाइड कैसे किया? 5/4 ही लोगे आप? मैं वही बता रही हूँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने इस तरह से लिया कि आपके पास यहाँ पे जो टर्म आए, जैसे n की पावर 1/4 आया है आपके पास, कि 1 माइनस ये करने से मेरे पास नीचे ही रहे, नीचे मतलब लिमिट मेरी 0 बन जाए। ओके बेटा, तो दिस यू विल गेट विद प्रैक्टिस। आपके ट्यूटोरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं इसकी एक्सरसाइज भी भेजूंगी आपको, एंड इन द क्लास इटसेल्फ वी विल बी डूइंग मोर प्रैक्टिस। लेट अस डू मोर क्वेश्चंस। सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 3 upon n प्लस रूट n। अभी मैंने इसको डीसीटी से किया था, एलसीटी से कर सकते हैं? बताइए क्या लूं मैं अपना bn? मैम n ले लेंगे तो हो जाएगा 1 by n, ठीक है। तो सिग्मा an जब भी आपकी लिमिट पहले फाइनाइट आ जाए वो बेस्ट है। तो दिस इज लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 3 by n प्लस रूट n अपॉन 1 by n। सो लिमिट कितनी आएगी बताइए? 3 आएगी ना बेटा, फाइनाइट आ गई। इसका मतलब an और bn का बिहेवियर सेम है, और bn क्या है? सिग्मा bn क्या है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है p टेस्ट से, राइट। देयरफॉर फाइनाइट लिमिट कहती है, LCT says that sigma n from 1 to infinity 3 upon n plus n is root n is divergent. Okay? कैसे सोच के bn चूज करना चाहिए? बेटा मैं वही कह रही हूँ कि आपको लिमिट यहाँ पे अगर फाइनाइट आती है, जैसे इस क्वेश्चन में तो फाइनाइट लिमिट सीधा दिख रही है कि हमने अगर ऊपर नीचे n हो तो फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। उस केस में तो आपके पास ये कुछ भी हो चलेगा, बट इस लास्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा था? फाइनाइट लिमिट आने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि log n है, ठीक है। तो लिमिट 0 ही आ रही है, इसका मतलब तभी काम चलेगा जब आपने ये कन्वर्जन चूज किया है। गॉट इट? ये वाला आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले हमने n² चूज किया था तो वो ऊपर चला जा रहा था रूट n। 1 से बड़ा भी होना चाहिए और नीचे आपका रहना चाहिए n की लिमिट आपकी 0 आए। फाइन, ओके, लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। उसमें बताइए आपका क्या चूज करोगे आप bn? मैम यस मैम हाउ इज 1 by n डाइवर्जेंट? बेटा p टेस्ट। पीट है। ठीक है,
ओके, टेल मी, यहाँ पे ये सीरीज है आपकी, क्या चूज करोगे? bn। n चूज 1 by n raised to बेटा अब power यहाँ 3 से by ध्यान 2. से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है? ओवरऑल डिग्री क्या है? 1 by n की 1 रूट by n। n raised to power 5 by ओवरऑल 2. डिग्री n क्या के है? पास 1 by 5 by n की 2 पावर 3 by 2। 10 to the power 3 by अगर 2. आप 1 by n की पावर 3 by 2 ले लोगे तो ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाएगी। कैन यू सी दैट? क्योंकि Yes, नीचे ma'am. डिग्री कितनी है? 5 by 2, ऊपर डिग्री 1 है। मैं ऊपर नीचे डिग्री सेम बनाना चाहती हूँ, तो आई विल चूज bn is equal to sigma 1 bn is equal to 1 by n raised to power 3 by 2। so limit n going to infinity an upon bn क्या हो जाएगा? that will be limit n going to infinity n की पावर 5 by 2 plus n की पावर 3 by 2 upon नीचे n की पावर 5 by 2। so this is limit n going to infinity 1 plus 1 by 5 by 2 minus 3 by 2 n। so this is 1। this is finite। finite मतलब इसका, इस सीरीज का बिहेवियर एंड इस सीरीज का बिहेवियर इज सेम। नाउ व्हाट इज दिस? Convergent. This is convergent by p test। this is convergent by p test। therefore the given series LCT says कि given series is convergent। n plus 1 upon n square root n is convergent। मैम फर्स्ट समेशन bn पूरा दिखाना भी है कन्वर्जेंस p टेस्ट के थ्रू या सिर्फ बता देना है? लिखना है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे कि p टेस्ट लगा रहे हैं हम। मतलब पूरा Okay. दिखाना नहीं है सॉल्व करके? नहीं, ओके ठीक है। ओके, लेट मी टेक दिस वन। अभी टाइम तो हमारा कम बचा है, तो अगला टेस्ट मैं कराना चाह रही थी, बट इट इज ओके, वी आर नॉट डूइंग दैट, राइट? सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, n from 1 to infinity 1 by square root of n cube plus 2। फटाफट बताओ, ये तो सिंपल है। क्या करें? bn क्या चूज करें? 1 by n raised by to n की power power 3 by 2 1 by root n 1 by n की पावर 3 by 2, 3 by 2. राइट? 2, क्योंकि yes, ma'am. 3 by 2 है, तो an upon bn की लिमिट क्या हो जाएगी? n going to infinity will be 1, है ना? So you can compute the limit। finite है, therefore behavior is similar, so ये convergent है, this is convergent by p test, therefore this is also convergent। okay, now look at this question is sigma n from 2 to infinity 1 by log n square। बताइए इसमें क्या करें? अब आपको आइडिया लगना चाहिए। अब log n नीचे है, डिग्री वो जो ऊपर हम कर रहे थे पॉलिनोमियल वाली चीज, उसमें डिग्री मैच हो जाएगी, बट यहाँ पे डिग्री मैच होने का कोई चांस नहीं है, तो क्या लूं? log square। अगर आपने 1 by n स्क्वायर लिया तो लिमिट क्या आएगी? 0 आएगी कि नहीं, कि इन्फिनिटी आएगी? देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से सोचो, अगर 1 by n स्क्वायर लिया तो लिमिट bn को अगर 1 by n स्क्वायर लिया तो लिमिट an अपॉन bn क्या आएगा आपका? लिमिट n स्क्वायर अपॉन log n स्क्वायर। ये क्या होता है? 1 इन्फिनिटी ना, क्योंकि log n अपॉन n की लिमिट 0 होती है, तो उसकी उल्टी लिमिट इन्फिनिटी होगी। Yes, ma'am. अब ये अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो बीच अगर bn डाइवर्जेंट है, देन टेस्ट टेल्स यू दैट an इज डाइवर्जेंट, बट bn तो आपने यहाँ पे कन्वर्जेंट लिया हुआ है, सो टेस्ट अगर हम लोग bn को 1 by log n लेते हैं तो 1 by log n आपको पता है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? हम इन्फिनिटी पे जाएगा जब भी, तो वो 1 by इन्फिनिटी हो जाएगा, वो 0 हो गया ना, वो उसके लिए आपको अलग से कोई ऐसा लो जिसका आपको पता हो कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर आपने bn ऐसा ले लिया जिसका आपको पता नहीं है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उसकी फिर से चेक कर रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट। 1 by n square। 1 by n स्क्वायर तो ले लिया बेटा, वो उसमें तो इन्फिनिटी लिमिट आ रही है, टेस्ट लग ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे वाला जो है वो कन्वर्जेंट है। ये सबको समझ में आ रही है ये चीज? अगर आपकी इन्फिनिटी लिमिट आए तो अगर ये डाइवर्जेंट होगा तभी लगेगा टेस्ट। हम 1 by n ले सकते हैं। हाँ 1 by n लीजिए बेटा। अगर आप 1 by n लोगे तो क्या होगा? लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी an अपॉन bn विल बी लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी n by log n का स्क्वायर। सो दिस इज लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी n by log n इनटू लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी 1 by log n। ये क्या है?
ये क्या है बेटा? इन्फिनिटी और ये जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बन रही है, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो अभी क्या करोगे, इससे पहले ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो लॉपिटल लगाइए। तो क्या हो जाएगा आपका? लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी 1/2 log n बाय n, राइट? लॉपिटल रूल लगाया, ऊपर नीचे डेरिवेटिव किया है। सो दिस लिमिट इज हाउ मच? लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी n by log n 1/2 आउटसाइड, सो दिस इज इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट इन्फिनिटी आ रही है और bn क्या है? डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है ना, सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट। अब टेस्ट लग जाएगा। देयरफॉर LCT says sigma an is divergent. Is that okay? Okay beta, we will practice more question. Ma'am, I am confusing that. Okay, how to take bn, that is a confusion, obviously I understand. So let me explain this in the next class again, क्योंकि उसके बाद जो हमने टेस्ट लगाने हैं रेशियो, उसमें चलो हमें bn नहीं चूज करना पड़ेगा। देखो ये हमारा LCT की ये ड्रॉबैक है कि हमें bn कैसे चूज करना है। Obviously you will learn कैसे चूज करना है, but in the next test, okay, let us make it a point कि सबको ये लग रहा है what is the drawback of LCT. LCT and DCT, they have drawbacks. How to choose bn, how to choose bn, so that drawback will be rectified in the next test, which is ratio test and root test. Is that okay beta? So mostly questions में हम ratio और root लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमें bn नहीं choose करना पड़ता। but यहाँ पे भी you can have an idea कि जब भी आपके पास polynomials हैं, then you choose a bn such that ऊपर नीचे डिग्री मैच हो जाए। ओके, एंड whenever you have log वाली चीज, दो तरह की चीज ही आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तब आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है कि अगर लिमिट 0 आ रही है तो नीचे वाली चीज जो चूज करें वो कन्वर्जेंट हो, अगर लिमिट इंफिनिटी आ रही है तो नीचे वाली जो चीज चूज करें वो डाइवर्जेंट हो। ओके, सो वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी, इन द नेक्स्ट क्लास। एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। 1/2 n अपॉन log n था, तो हाँ। मैम ऊपर अगर उसमें वैल्यूज जाने n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन log इंफिनिटी नहीं हुआ? Yes beta, but we have already done this thing, log n by n, limit n going to infinity is 0, ये हमने कर चुके हैं, ठीक है? तो ये उसका उल्टा है। वो इंटीग्रेशन से भी कर सकता ना कि इसको लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी को इंटीग्रेशन लगा के करूँ, ये 0 इतना तब आएगा। कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को प्लीज, ठीक है? ये अगर आपको करना है तो लॉपिटल लगा लो सिंपल, अगर आपको नहीं पता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, लॉपिटल लगाओ 1/1 by n, n फिर ऊपर आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी लिमिट आ गई, ठीक है? हाँ जी बेटा। ओके बेटा। यस हमने अपनी तरफ से फाइनाइट करनी होती है, सबसे पहले कोशिश लिमिट करें फाइनाइट। हाँ, फाइनाइट हो जाए तो वो बेस्ट है। ओके, ठीक है बेटा। वो वैसे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन या वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है? पॉलिनोमियल्स होंगे, जब भी रैशनल फंक्शन होंगे, मतलब ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, तब वो फाइनाइट हमेशा बना सकते हो आप। ओके, तो उस केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनाइट जिससे भी बनेगी, अगर वो कन्वर्जेंट हो गया तो हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट हो गया तो हमारी सीरीज भी डाइवर्जेंट। बट अगर लिमिट 0 और इन्फिनिटी आती है तब पंगा पड़ता है कि हमें नीचे वाली चीज, अगर 0 लिमिट आ रही है तो हमें नीचे वाली चीज ऐसी करनी है जो कन्वर्जेंट है ना? तो कई बार क्या होता है कि वो कन्फ्लिक्टिंग होता है, तो थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। Don't worry, we will practice more question and in the next 2 tests this problem will be rectified. फिर आप अपनी problems में most of the times यही ratio और root test लगाओगे, क्योंकि उसमें bn नहीं choose करना पड़ता। Fine? Yes. Okay बेटा, time हो गया। I will take your doubts in the next class. Okay? मैम आपने कहा था अब इस हफ्ते एक डाउट सेशन शेड्यूल करेंगी। Yes बेटा, वो still I am planning. I will let you know. Okay. Okay ma'am. There is one student, Hemant. Okay, Hemant, I will try to speak in English only if you have a problem with Hindi. Okay, but I will take care of this thing. And in case I am not taking care of this thing, you can write me again. Okay, beta? Okay, thank you. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Have a nice day. Don't worry, don't take tension कि हमें समझ नहीं आ रहा BN. Don't take tension that we are not able to get BN. Slowly you will get what you should take as your BN. Don't worry about that. Okay. Thank you, everybody. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.